السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وایسنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين، رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سورہ نمبر 15 الحجر، آیا نمبر 20 ہو گیا تھا 21، اب 21 شروع کریں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کے پاس تو بہت خزانے ہیں، خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بے حساب بے شمار بے کراں سمندر ہے خزانوں کا، لیکن اللہ سب کو یک ساتھ نہیں نازل کر دیتا۔ جہاں جس وقت جیسا ضرورت ہے، خزانے مطلب اس میں سب کچھ ہے۔ بارش نازل کرنا اللہ کی رحمت ہے، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز ہمارے نازل کرنا، بارش نازل کرنا، دھوپ کا آنا، ہر چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اور وہ کیسا نازل کرتا ہے اللہ؟ بقدر معلوم، کس کو کہاں کتنا دینا ہے، کتنا اناج ہوگا، کتنی بارش برسانا ہے، کتنا اناج اگانا ہے، کہاں کتنا غلہ اگنا ہے، چارہ کتنا ہونا ہے مویشیوں کے لیے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس موازنے کے تحت ایک قدر بولے تو ایک پیمانہ، ایک توازن، ضرورت بقدر ضرورت نازل کرتا ہے اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان اگر اللہ سے پہلے آیا تو کیا مطلب دیتا ہے؟ ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کا مطلب یوزولی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے، اگر۔ لیکن اللہ سے اگر پہلے آ گیا، ان اگر فالوڈ بائی اللہ آیا تو وہ نافی ہوتا ہے، نہیں کے مطلب میں ہوتا ہے، یہ جان لینا چاہیے۔ اگر اللہ آیا تو وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز، الا مگر، عندنا، اندا پاس، نہ ہمارے پاس، ضمیر ہے یہ، عندنا عندنا بولے تو ضمیر، اندا بولے تو پاس، نہ ضمیر ہے یہ، واحد جمع متکلم کی، ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز، ہمارے پاس خزائن ہو، اس کے خزانے، وما اور نہیں، ننزل ہو ہم نازل کرتے ہیں، ہم اسے اتارتے ہیں، الا مگر، بقدر معلوم، ایک اندازے کے تحت، ایک ڈیفینیٹ اندازہ، معلوم بولے تو ایک ڈیفینیٹ اندازہ، نون اندازے کے مطابق اللہ نازل کرتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہے۔ لیکن کیسے نازل کرتا ہے؟ ہر چیز کو ایک دم کہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی نازل کر دینا، کہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں، کہاں ضرورت ہے وہاں نہیں نازل کرنا، ایسا نہیں ہے۔ کہاں کتنا کیسے دینا اللہ کے علم میں ہے، اس کے تحت جیسے جیسے ضرورت ہے ویسے نازل کرتا ہے اللہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ہر چیز ہے اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں۔ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں، ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے، ایک مقدار ہے، ایک توازن ہے، ایک کوانٹیٹی ہے جس کے تحت اللہ نازل کرتا ہے ضرورت کے مطابق۔ یہاں اس حقیقت پر متنبع فرمایا گیا ہے کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نباتات بولے تو یہ درخت وغیرہ، ان کو جتنا اگانا، ہاں ہرے بھرے یہ گرین جو رہتی،
हरे भरे ये जो बागात वगैरह रहती हैं उस सबको नबातात बोलती हैं। जो भी उगता है वो चीज जी हाँ। नबातात है। उगना, ऊपर उगना। उगती है ना, उसे नबातात बोलते हैं सब। नशो नुमा पाने की चीज। ये सिर्फ दरख्तों के साथ ही मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम मौजूदात के मामले में आम है। मौजूदात बोले तो हर चीज जो है दुनिया में, उसके साथ ये रूल आम है। क्या रूल? अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन उसे कैसा नाजिल करता है अल्लाह? एक मिकदार में नाजिल करता है, एक तवाजुन में नाजिल करता है, और एक जरूरत के तहत होता है, और एक मिकदार होता है। वो एक मालूम मिकदार होता है, एक डेफिनेट क्वांटिटी में नाजिल करता है। जैसे हवा, पानी, रोशनी, गर्मी, ये जमादात। जमादात, जमादात किसे बोलते हैं? जो जमकर रहती हैं, ठहरे हुए रहती हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ कैसा है? अपनी जगह से हिलते नहीं, नहीं, जमे हुए। हम्म, ये जमादात है। नबातात, ये जो दरख्त वगैरह। दरख्त, हैवानात, ये जो जानवर वगैरह। जानवर। हर चीज, हर नौ, हर जिन्स और हर कुव्वत व ताकत के लिए एक हद मुकर्रर है। किसे कितना देना, नबातात की कितना, रोशनी कितनी होना, पानी कितना, गर्मी कितनी, सर्दी कितनी, पहाड़ा कहाँ कहाँ होना, दरिया कहाँ कहाँ बहाना, दरख्त को कहाँ उगाना, हैवानात को कहाँ कहाँ पैदा करना। हर चीज, हर नौ, हर जिन्स और हर कुव्वत और हर ताकत, इसका एक हद मुकर्रर है। अल्लाह के पास एक हद मुकर्रर है जिस पर वो ठहरी हुई है। यानी कायनात पूरा एक तवाज़ुन बरकरार है। कितना, कहाँ, कैसा होना, ये सब एक बैलेंस्ड है। हर हर चीज बैलेंस्ड है अल्लाह की कायनात में। और एक मिकदार है जिससे ना वो घटती है ना बढ़ती है। एक मिकदार मुकर्रर कर दिया है अल्लाह, ना उससे बढ़ती है ना उससे घटती है। इसी तकदीर और कमाल दर्जे की हकीमाना तकदीर ही का ये करिश्मा है कि जमीन से लेकर आसमानों तक पूरे निजाम कायनात में ये तवाज़ुन, ये इत्तेदाल और ये तनासुब नजर आता है। सारी कायनात में, जमीन से लेकर आसमान तक, जहां तक हमें हद नजर तक हमारी नजर जाती है, सब में एक प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन है। नहीं, हर चीज में रेशियो प्रोपोर्शन है। जमादात कैसा, पहाड़ कितने, दरख्त कितने हद तक उगती, जानवर कैसे होती, उनका हाइट, उनका ये थोड़े लंबे होती हैं, जिराफ कैसा होता है, अब ये दूसरे कैसे होती हैं, हाथी कैसा होता है, अभी छोटी छोटी मखलूक भी हैं, उनका भी एक तवाजुन है। तो हर चीज का तवाजुन, ये तदाल, यहाँ तनासुब नजर आ रहा है। तनासुब, तनासुब किसे बोलते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो। मिकदार। तनासुब बोले तो रेशियो प्रोपोर्शन। अब फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, हमारी सूरत हम्म, बनाया है अल्लाह, कैसा जी। बनाया है? हाँ? कैसा बनाया है? नाक कैसी कितनी होना, होंठ कैसे हाँ, रहना, आंख कैसे रहना, आंख की जगह आंख रहना, नाक की जगह नाक रहना। हाँ? पेशानी एकदम बहुत बड़ी हो गई तो भी कैसी डरावनी लगती है। बाल कहाँ की चले गई, सर का हिस्सा कहाँ की दूर से शुरू हो रहा है, पेशानी इतनी बड़ी हो गई तो भी कैसा लगता है। अल्लाह खूबसूरती से बनाया है। अल्लाह हसीन और जमील है। इंसान को भी खूबसूरत बनाया है। ये कहाँ मालूम होता है हमें? एक वाकया हुआ था, वो आपको बयान कर चुकी हो, आपको याद है या जी। नहीं पता नहीं। एक यहाँ का ये किस्सा है, वो केरला का या याद कहीं का, याद नहीं, याद नहीं है। याद नहीं है। एक हम्म, बादशाह, यहाँ का सूबाई जी। बादशाह, जो हम्म, बैठा हुआ था दरिया किनारे। जी। चांद बहुत पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, चौदहवीं का चांद समझिए, चौदहवीं का चांद हम्म, चमक रहा था। मियां बीवी दोनों राजा रानी बैठे हुए देख रहे। बहुत खूबसूरत मंजर है, दरिया में उसका अक्स पड़ रहा है, बहुत खूबसूरत मंजर है। तो ये बैठे बैठे ऐसे ही अल्फाज में कह देता है कि अगर तुम इस चांद से खूबसूरत नहीं हो तो मेरी तलाक, जबान से निकल गया। अब वो हम्म, बेचारी दीनदार अंदर चले गई, पर्दे में चले गई, और बोली कि मेरा तुम्हारा अब रिश्ता नहीं है। इन्हें परेशान, पूरी रात परेशानी में गुजारता है, क्या करना, बैठे बैठे मजाक मजाक में क्या बात हो गई ना।
कैसी गलती हो गई ना, पूरी रात बेचैनी से गुजारता है। और उसके बाद जाकर सुबह जब दरबार लगता है तो दरबार में यह बात जाहिर करता है कि ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, ऐसा मेरी जबान से निकल गया, और मेरी बीवी है ना कह दी कि मेरा तुम्हारा अब रिश्ता नहीं है। बोल, क्या हुआ, ये सही है क्या जो बीवी कह रही है, सही है क्या? क्या मेरा रिश्ता टूट गया क्या उसके साथ? सब बोलती है हाँ टूट गया, आपकी जबान से जो निकल गया, तलाक के अल्फाज निकल गए, तलाक हो गई, टूट गया आपका रिश्ता। ये एक शख्स जो ज्यादा आलिम रहता है, ज्यादा जानने वाला रहता है, उन्हें खामोश बैठा रहता है। तो उनसे पूछता बादशाह, आपका क्या ये है, आपका क्या नजरिया है, टूटा क्या मेरा रिश्ता? बोले तो नहीं बोलती उन्होंने। आप सब बोल रही हाँ, आप बोल रही नहीं, वो कैसा? तो उन्होंने तब बयान करती कि सबसे खूबसूरत चीज मखलूकात में कौन है? सबसे खूबसूरत हसीन बनियान जमील इंसान में, इंसान है। इंसान इंसान में। अशरफुल मखलूकात हाँ भी है, हाँ अक्ल वाला भी है, हजूर। और हाँ हुस्न जमाल वाला भी है। सबसे खूबसूरत वो है। तो आप जो बोले कि अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं रही तो तलाक, हाँ, एक कंडीशन है ना वहां पर, ये कंडीशन जी। पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? चांद ज्यादा खूबसूरत नहीं है, आपकी बीवी नहीं ज्यादा है। खूबसूरत, यानी इंसान, कोई भी इंसान वो ज्यादा खूबसूरत है, बाकी सारी मखलूकात उन्हों कमतर है। हुस्न जमाल में उन्हों कमतर है, अकल में भी कमतर है, हुस्न जमाल में भी कमतर है। तो यहाँ मालूम होता है कि ये अल्लाह जो कमाल दर्जे का इंसान को पैदा किया है, क्या क्या है, क्या क्या दिया है, क्या इंटेलिजेंस लेवल है, क्या इंटेलेक्चुअलिटी है, और कैसा हुस्न जमाल भी है इंसान में। तो यहाँ ये तवाज़ुन है, ये तदाल, ये तनाजुब, ये तनासुब, ये प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन जो हमें नजर आता है, ये हमें अच्छा मालूम होता है, बखूबी हमें नजर आ रहा है कि ये ही खुदा की कारीगरी है। ये ही खुदा की कारीगरी है। आप देखिए, आप एक कंपनी फॉर्म होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती, बहुत से होती, लेकिन एमडी एक ही होता है। अगर एमडी एक दो तीन हो गए तो क्या होता है? इसका हुक्म निजाम चलना ही नहीं खराब हो चाहता है। जाता है। हाँ, दरहम बरहम हो जाता है निजाम। हाँ। इसका हुक्म चलना कहता है, उन्हें उसका हुक्म हम्म, चलना कहता है। नतीजा क्या होता है? ये कंपनी डूब जाती है। रुक जाती। थोड़े काम वाले उसकी तरफ हो जाती हैं, थोड़े काम वाले उसकी तरफ हो जाती हैं, कोई इसकी मानता है, कोई उसकी नहीं मानता, ये दरहम बरहम निजाम हो जाता है। तो यहाँ भी ये खुदा की कारीगरी, उसकी कार फरमाई है, उसका हुक्म चल रहा है। इसमें दो तीन होते तो यहाँ निजाम बिगड़ जाता, ये तवाजुन ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ ये तनासुब जो नजर आ रहा है, अगर ये कायनात का एक इत्तेफाकी हादिसा होती, या बहुत से खुदाओं की कार फरमाई यहाँ होती, तो ये इसका नतीजा क्या होता? दरमियान में मुकम्मल तनासुब, ये जो है रेशो प्रोपोर्शन है, ये जो चल रहा है, ये जो निजाम बखूबी चल रहा है, जो ऑर्बिट्स में ये मखलूकात घूम रहे हैं, फल्की निजाम चल रहा है, अजरा में फल्की चल रहा है, ये सब दरहम बरहम हो जाता, दुनिया का निजाम भी दरहम बरहम हो जाता। तो यहीं से कायनात का जर्रे जर्रे के वजूद से हमें मालूम होता है कि अल्लाह वहदानियत का ये हमें पता चलता है, ये एक ही है अल्लाह, एक ही है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं है। दूसरा होता तो निजाम ऐसा नहीं होता था। गालिब का शेर याद आता है, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। बातिल अच्छा। नहीं है, अबस नहीं है, हक ला हम्म, शरीक है, कोई शरीक नहीं है अल्लाह के साथ। एक बड़ा फलसफियाना शेर बोली हूं ना। बहुत से चंद अशियार उनके इतने अच्छे हैं, उसके इवज में बहुत से बड़े बड़े चोटी के शोरा बोलेंगे, ये शेर ही अगर हमारे नाम कर दें तो हमारा पूरा दीवान गालिब के नाम कर दे, हम कर देंगे गालिब के नाम। तो इतने चोटी के, इतने आला बुलंद पाया शेर भी उनकी जबान से अदा हो गई। हालांकि बहुत बड़े दीनदार, कोई आली ये नहीं है उनका, भी वो नहीं। ये नहीं है जैसा इकबाल का ये है, वैसा नहीं है वो। लेकिन फिर भी वो कोई वजदानी कैफियत वो क्या होती थी, कई फलसफियाना शेर ये अल्लाह की वहदानियत पर उन्होंने बहुत से अदा कर दिए हैं, ऐसे बहुत से हैं।